students, so let us start our 1.3 exercise, that is of derivability. Now what is derivability? Any function is said to be derivable. First let us see the definition. Any function is said to be derivable in neighborhood of C C belongs to neighborhood of A, B, such that limit h tends to 0 f of c plus h minus fc by h exists, then it is the function is said to be derivable. Let me read the definition from your book. A function be defined. Let a function be defined in the neighborhood of c, then the function is said to be derivable at c. यहाँ लिख सकते हो आप, then the function is said to be derivable in the neighborhood of c. The function is said to be derivable at c. अगर ये कंडीशन होल्ड कर जाती है तो फंक्शन डेरिवेबल हो जाएगा हमारे c के ऊपर. Now what is right hand derivability and left hand derivability? Right hand क्या होगा? Limit h tends to 0 positive f of c plus h minus fc by h. And left hand, if I talk about left hand, it will be limit h tends to 0 negative f of c plus h minus fc by h. अगर ये दोनों लिमिट जो है हमारे पास एग्जिस्ट करती हो तो ये राइट हैंड डेरिवेबिलिटी होगा और ये लेफ्ट हैंड डेरिवेबल हमारा फंक्शन होगा. अब बात करते हैं, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है मेरे पास. कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में और मे नॉट बी डेरिवेबल. जरूरी नहीं कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस हो, वो हमारे पास डेरिवेबल हो. अभी हम एग्जांपल्स करेंगे. लेकिन एक डेरिवेबल फंक्शन होएगा ना, अगर कोई भी फंक्शन डेरिवेबल है ना तो वो 101% कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही होगा. तो 101% कंटिन्यूअस हमारे पास होगा ही होगा. तो इसके बेस पे हमारे एक थ्योरम है. पहली बात, यहाँ पे जो a है ये क्लोज्ड इंटरवल में डिफाइंड है. थ्योरम क्या कहती है? लेट अ फंक्शन एट पॉइंट a इज डेरिवेबल देन इट विल बी कंटिन्यूअस. फंक्शन जो है हमारे पास डेरिवेबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा. अगर फंक्शन डेरिवेबल है so by definition we can write that this limit will exist. ये exist करेगी लिमिट, so limit h tends to 0 f of c plus h minus f of c by h. अब मैं क्या करती हूँ, इस ये तो हमारे पास क्या होता है, डेरिवेबिलिटी होती है ना. डेरिवेबल जिसको हम कहते हैं f डैश, ये x है ना शायद, यहाँ c plus h है, c plus x है, h ले रखा है इसमें. तो डेरिवेबल होएगा at f is equal to h. Now limit h tends to 0 is equal to यहाँ पे c plus h f of, यहाँ पे h उधर मल्टीप्लिकेशन ले लो, f of c plus h minus fc is equal to h into limit h tends to 0 f dash h. h यहाँ मल्टीप्लाई में ले लो अंदर. अब लिमिट h tends to 0 है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0. तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट h tends to 0 f of c plus h minus fc is equal to 0. तो इससे क्या पता लग रहा है कि हमारे पास लिमिट जो है वो कंटिन्यूअस है. ये जो कंडीशन होती है लिमिट कंटिन्यूअस होने की. So therefore the function that is derivable is always continuous. Now let us see the examples based on this. Now first example is this, कि हमें बताना है कि जो हमारा गिवन फंक्शन है कंटिन्यूअस है लेकिन डेरिवेबल नहीं है. तो कंटिन्यूअस वैसे हम फर्स्ट एक्सरसाइज में ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन दोबारा कर लेते हैं. लिमिट x tends to 0 पॉजिटिव f of x और लिमिट x tends to 0 नेगेटिव f of x दोनों इक्वल होने चाहिए कंटिन्यूअस के लिए. तो लिमिट x tends to 0 पॉजिटिव क्या आएगी, x into sin 1 by x. नाउ x क्या है, 0 into some finite value which is lying between -1 and 1, that will be equal to 0. Similarly limit x tends to 0 negative x sin 1 by x will always also be 0.
and f of 0 is already given to you 0. So therefore all these three are equal, therefore function is continuous. Now check the derivability. Now f of 0 plus h minus f0 by h limit h tends to 0. f of c plus h होता है, यहाँ पे c क्या है हमारे पास 0, c होती है ये वाली वैल्यू, h tends to 0. अब f of 0 plus h क्या होएगा हमारे पास h sin 1 by h. f of 0 क्या है 0 divided by h, that will be sin 1 by h limit h tends to 0. अब sin 1 by h limit h tends to 0 एग्जिस्ट ही नहीं करती, so it does not exist. ये एग्जिस्ट ही नहीं करी तो फंक्शन जो है वो हमारे पास डेरिवेबल नहीं है, so it is not derivable. डेरिवेबिलिटी के लिए एग्जिस्ट करनी चाहिए लेकिन एग्जिस्ट ही नहीं करी, so it is not derivable. Now let's see next example. Now इसमें हमें दे रखा है mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 lies from the interval 0 to 3. तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके इंटरवल को तोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमें इसको कंटिन्यूस दिखाना है. इस इंटरवल में 0 to 3 इंक्लूडेड है, उसको मैं तोड़ देती हूँ. 0 to 1 x lies from 1 to 2 and from 2 to 3. इस इंटरवल में हम इसको तोड़ लेते हैं. अब बात करते हैं इसकी वैल्यूज क्या आएगी. देखिए 0 से 1 सपोज 0.5 पुट करना है यहाँ तो आ रहा है माइनस. 0.5 पुट करते 0.5 minus 1 that is minus 0.5. नेगेटिव आ रहा है तो इसको लिखेंगे माइनस ऑफ x minus 1. देखिए अगर मोड ऑफ x के अंदर नेगेटिव सपोज x जो है लेस देन 0 है तो हम इसको क्या लिखते हैं माइनस x ना. तो सिमिलरली यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, mod of x minus 1 is less than 0, therefore we have x minus 1 का नेगेटिव प्लस 0 to 1 में सपोज मैंने 0.5 पुट किया, अगेन इट इज कमिंग नेगेटिव, so minus of x minus 2 that is equal to minus x plus 1 minus x plus 2 that is minus 2x plus 3 minus 2x plus 3. हम बात करते हैं नेक्स्ट 1 to 2 के बीच में 1.5 ले लो सपोज, तो ये 1.5 पुट करेंगे तो 1.5 minus 1 that is positive, so this will be positive. 1.5 यहाँ पुट करो 1.5 minus 2 that is minus नेगेटिव आ तो नेगेटिव आ रहा है तो इसका नेगेटिव ले लेंगे, that is your 2 1 आ रहा है हमारे पास. अब बात करते हैं 2 to 3 2.5 ले लो सपोज, 2.5 पे आ रहा है पॉजिटिव और ये भी क्या आ रहा है पॉजिटिव, तो आ जाएगा 2x minus 3. तो हमारे पास ये तीन वैल्यूज जाते हैं 3 minus 2x 1 2 minus 2x minus 3. अब हमें इसकी कंटिन्यूटी भी चेक करना है, डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करनी है. अब किस किस वैल्यूज पे इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं. देखिए हम इसकी 1 पे चेक कर सकते हैं और 2 पे भी चेक कर सकते हैं, तो दो जगह हम इसकी चेक करेंगे at 1 and at 2. नाउ व्हेन x is equal to 1 we will check the continuity and differentiability. वैसे एक चीज मैं बता दूं, ये हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन आ रहा है और एक पॉलिनोमियल फंक्शन आ रहा है, वो ऑलवेज कंटीन्यूअस होते हैं, फिर भी चेक करना जरूरी है क्योंकि हम लाइन नहीं लिख सकते. लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f of x that is limit x tends to 1 positive 1 that is equal to 1, or limit x tends to 1 negative f of x that is limit x tends to 1 negative minus 2x plus 3 that is minus 2 plus 3 that is 1, and f of x is also f of 1 is also 1, so these three are equal, therefore limit x tends to 1 positive fx is equal to limit x tends to 1 negative fx is equal to f of 1, therefore it is continuous. तो हमारे पास क्या आ गया continuous. अब इसकी चेक करते हैं हम डिफरेंशिएबिलिटी कि डेरिवेटिव होएगा या नहीं होएगा. लेट्स चेक इस डेरिवेटिव. डेरिवेटिव हमें चेक करना है 2 पे, सो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट लेके कर सकते हैं ना क्योंकि 2 पॉइंट्स वाले. तो लिमिट x tends to 2 positive f of x का डेरिवेबिलिटी that is equal to limit h tends to 0 f of 2 plus h minus f of 2 divided by h. ये होता है ना, c की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे अब 2 that is equal to f of 2 plus h.
पॉजिटिव मतलब ये, तो 1 माइनस 1 बाय एच दैट इज इक्वल टू 0। अब बात करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव पे चेक करें क्या हम? हाँ सॉरी, हम 1 पे चेक करें, यहाँ पे 1 पे चेक कर रहे हैं। 1 पॉजिटिव पे तो 1 आएगा, तो यहाँ 1 आएगा, क्योंकि यहाँ 1 पे चेक करें ना। लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव पे ये वाला फंक्शन आएगा, तो f ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 बाई एच दैट इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 1 प्लस एच प्लस 3। एफ ऑफ 1 क्या है हमारे पास? 1, सो माइनस 1 डिवाइडेड बाई एच दैट इज माइनस 2 0 माइनस 2h by h that is minus 2. So therefore they are not equal, therefore the function is not derivative नहीं है, because limit x tends to 1 positive is equal to 1 fx and limit x tends to 1 negative is minus 2. Therefore these are not equal, therefore a function is not derivable. ये not derivable भी है आपकी बुक में। Now let us check the continuity and derivability at 2. Now limit x equal to 2. So limit x tends to 2 positive. 2 पे positive मतलब 2 से बड़ा, that is 2x minus 3. That is 2 put करेंगे 2 से 4 minus 3 that is 1. Limit x tends to 2 negative. 2 से छोटा ये है ना 1. That is 1, that is equal to 1 and f of 2 कहाँ है हमारे पास? यहाँ, तो that is equal to 2 into 2 minus 3 that is equal to 1. तीनों इक्वल आ रहे ना 1 1 1, because limit x tends to 2 positive fx is equal to limit x tends to 2 negative fx is equal to f of x that is 1. So therefore the function is continuous. अब बात करते हैं डेरिवेबिलिटी की। लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx, बात करते हैं पॉजिटिव राइट हैंड डेरिवेबिलिटी चेक करते हैं, दैट इज f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय h। c की जगह क्या पुट करेंगे हम 1। अब f ऑफ 1 प्लस h, 1 पॉजिटिव पे क्या फंक्शन है? 1 पॉजिटिव पे है हमारे पास 1, दैट इज 1। अब कांस्टेंट 1 प्लस h तो पुट ही नहीं कर सकते, तो 1 प्लस h पुट करोगे तो भी 1 आएगा, f1 पुट करोगे तो भी 1 आएगा, डिवाइडेड बाय दैट इज इक्वल टू 0। अब बात करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x, दैट इज 1 नेगेटिव पे हमारे पास फंक्शन है माइनस 2x प्लस 3, सो f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय h। तो अब x की जगह क्या पुट करेंगे हम 1 प्लस h प्लस 3 और f1 पे क्या वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय h दैट इज इक्वल टू माइनस 2h बाय h। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है माइनस 2। Therefore right hand limit of derivable function is not equal to limit of left hand, therefore the function is not derivable. हमारे पास क्या है? derivable नहीं है, continuous तो है लेकिन derivable नहीं है। Let us see next examples. Now let us see example third. In this we have to check that the function is continuous and derivable and we have to prove that the function उसका derivative होएगा वो continuous नहीं होएगा। First let us prove the function is continuous and derivable. Limit x tends to 0 f of x। हमें एक चीज और पता है continuous के लिए हम क्या कर सकते हैं? This is should be equal to f of 0। ये भी कर सकते हैं ना, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव लेके भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैं डायरेक्टली कर रही हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x दैट इज x स्क्वायर sin 1 by x। तो दोबारा 0 into some finite value that lies between -1 and 1 that is 0 and f of 0 is also 0, therefore it is continuous. Now let us see the function is derivable or not. Limit x tends to 0, डेरिवेबल के लिए भी ये कंडीशन हम प्रूव कर सकते हैं कि एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, या फिर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल करके भी कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ x स्क्वायर साइन f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h। f ऑफ 0 प्लस h दैट इज h स्क्वायर साइन 1 बाय h। 0 पे क्या होएगा 0 डिवाइडेड बाय h दैट इज h साइन 1 बाय h और लिमिट क्या है h टेंड्स टू 0। अगेन h इज 0
and this is some finite value that is equal to 0, that is equal to f of 0, hence it is डेरिवेबल. अभी बोल रहा है कि इसका जो डेरिवेटिव होएगा ना वो डेरिवेबल होगा या नहीं. इसका डेरिवेटिव क्या होएगा हमारे पास इस फंक्शन का 2x sin 1/x प्लस sin प्लस x स्क्वायर. साइन का क्या होता है cos 1/x इंटू माइनस 1/x स्क्वायर, दैट इज 2x sin 1/x, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, माइनस cos 1/x. So let's see further. Now we have to check. इसको पुट कर दो लिमिट x टेंड्स टू 0. कंटिन्यूअस के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) should be equal to f of 0. अब इसमें चेक लिमिट पुट करेंगे x टेंड्स टू 0. अगेन 0 into some finite value, this is 0 माइनस cos 1/x. अच्छा पहले इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, लिमिट को सेपरेट आउट. लिमिट x टेंड्स टू 0 2x sin 1/x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 cos of 1/x. अब ये तो 0 ही हो जाएगा. अब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे sin 1/x एग्जिस्ट नहीं करता, cos 1/x भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो दिस डज नॉट एग्जिस्ट. तो अभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करी, therefore the function is discontinuous. Let's see the last example. If f is differentiable at a, अगर f differentiable है a के ऊपर, तो we have to prove limit x tends to a, x of fa minus a of fx divided by x minus a. अगर a differentiable है तो हमें प्रूव करना है कि जो है इसकी वैल्यू निकालनी है बेसिकली. अब देखिए हम क्या करते हैं, x माइनस a को एच पुट कर दें, क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ पे 0 बन रहा है, ऊपर भी 0 बन रहा है. ऊपर 0 कैसे बना है, यहाँ पुट करोगे a fa माइनस a इंटू fa, 0 बना है, नीचे भी 0 बन रहा है, तो x माइनस a को मैं एच पुट कर दूँ. और पुटिंग so as x tends to a, h will tend to 0. जब x a टेंड करेगा तो h क्या आएगा 0. so लिमिट h tends to 0, x की जगह हम पुट करेंगे a प्लस h, यहाँ से x आ जाएगा a प्लस h इंटू एफ ए माइनस ए एफ ऑफ a प्लस h divided by h. Now we will solve it further. Look here, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, a इंटू एफ ए प्लस h इंटू एफ ए माइनस ए एफ ऑफ a प्लस h डिवाइडेड बाय h, और लिमिट जो है h टेंड्स टू 0. अब इसमें से और इसमें से माइनस a कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए प्लस h एफ ए बाय h एंड लिमिट h टेंड्स टू 0. अब लिमिट्स को सेपरेट कर सकते हैं ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस ए एफ ऑफ, अच्छा ये बात जो है हमारे पास इसको मिल सकते हैं f डैश ऑफ a प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू एफ ए बाय h. यहाँ h से h कैंसिल, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए क्या हो जाएगा एफ ए, और ये क्या हो जाएगा माइनस ए एफ डैश ए. तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास एफ ए माइनस ए एफ डैश ए. बाय दिस चैप्टर 1 is completed. Let's meet in the next video.